I was wondering what's going on downstairs when I was coming up. और जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि नीचे क्या चल रहा है. I saw all the ladies down. और मैंने वहाँ पर नीचे सभी औरतों को देखा. I thought there was some double meeting happening down there. और मुझे लगा वहाँ पर नीचे कुछ और हो रहा है. And then I was told that the separation has happened right now. और मुझे पता चला कि अभी अलग किया गया है सभी को. The men are on the top and the ladies are down. जो पुरुष है वो ऊपर है और जो औरतें हैं वो नीचे हैं. And Pastor Ray was saying, how I wish I'd had an opportunity just to speak to the men. और पास्टर रे मुझसे कह रहे थे क्या ऐसा मुझे मौका मिलता था कि मैं सिर्फ पुरुषों से बात कर सकूं. I think it's a good thing. और मुझे लगता है ये अद्भुत बात है. There's a little bit more of freedom and liberty. और यहाँ पर थोड़ी और आजादी होती है. We can talk some man stuff. और हम मर्दों के बारे में कुछ बात कर सकते हैं. There's no hindrance with our spouses there. और फिर वहाँ पर हमारे जो जोड़ीदार हैं उनसे कोई रुकावट नहीं होती. Basically what I'm telling you is I'm going to beat you up. क्योंकि जो मैं मजाक कर रहा हूँ. I'm just joking. मजाक कर रहा हूँ. Okay, I'm happy to be here. Basically, I'm from Chennai, but based in Bangalore. और यहाँ पर आकर मैं खुश हूँ और मूलतः मैं चेन्नई से हूँ लेकिन बैंगलोर में रहता हूँ. I've got a lovely wife. और मेरी एक अद्भुत पत्नी है. She's from Nepal. वो नेपाल से है. And I've got two wonderful daughters. और मेरी दो अद्भुत बेटियाँ हैं. One is 17. एक 17 साल की है. One is 30. और एक 13 साल की है. That's a handful to manage. और ये बहुत ज़्यादा है संभालने के लिए. So I'm learning. तो मैं सीख रहा हूँ. I've just been married only for 17 years. और केवल 17 साल के लिए मैं विवाहित रहा हूँ. Versus Pastor Ray, who's 36, or pretty much double. और पास्टर रे जो कि 36 सालों से विवाहित है. I'm sure Pastor Ray has learned much more and accomplished much more. और मेरा मानना है कि पास्टर रे बहुत कुछ ज़्यादा सीखे हैं. But the 17 years that I've gone through, that's a handful. लेकिन जो 17 सालों के द्वारा मैं गुजरा हूँ वो भी बहुत है. You know, I don't know where they got this statement from. I don't know. Probably it's true. और पता नहीं ये वाक्य लोगों को कहाँ से मिला है. शायद ये सच है. They say if you've passed 6 or 7 years of your married life, you'll stay married. और वो कहते हैं कि अगर आप 6 या 7 साल अपने शादी में गुजार ले तो आप विवाहित रहेंगे. I don't know where they got it from. और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है. That's not from the Bible. ये बाइबल से तो नहीं है. So, but that's how they look at statistics and say, if you pass 7 years, you pass the test. लेकिन जो गिनती है वो देखकर वो ये कहते हैं कि अगर आप 7 साल अगर आप साथ रहे तो आप जिंदगी भर साथ रहेंगे. Well, since we are all pastors here today, और यहाँ पर हम सब पासबान हैं. And since we all come from different backgrounds, और क्योंकि हम सब अलग-अलग पार्श्वभूमि से आते हैं, and different cultures, और अलग-अलग सभ्यता से आते हैं, and also from different regions, और अलग-अलग जगहों से, I think we all have different issues that we go through. और इसलिए हमें अलग-अलग समस्याएं हैं जिनके द्वारा हम जाते हैं. And sometimes what helps one region might not help another region. और कई बार जो बात एक स्थान को मदद करेगी वो दूसरे स्थान को मदद ना करे. And for the next few days, I want to be concentrating on the essence of pastoring, the role of pastoring, what it would take for a church, what would the church be expected to do, what are the members thinking about, I'm just going to cover everything, God's call, and then everything. I'm going to just combine everything and just take it little by little so that we'll understand and relate with our struggles. My whole aspect is that we'll be able to relate with our struggles. और अगले कुछ दिनों में जो मैं बात करने वाला हूँ इस विषय में कि पासबान होना क्या है, पासबान होने में क्या कार्य महत्वपूर्ण है और कलीसिया का क्या काम है, कलीसिया में जो लोग हैं उनका क्या काम है, और इन सभी बातों को एक साथ मिलाकर मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ. Now I've been preparing some notes and I've got some stuff on my computer. I've got a lot of pages here. The more I look at them, the more confused I'm getting. और यहाँ पर मैंने कुछ पन्ने हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मेरे कंप्यूटर में कुछ नोट्स हैं, और जितना ज़्यादा मैं इनके पास देखता हूँ उतने ज़्यादा मेरी गड़बड़ी हो जाती है. From yesterday and till this morning as worship was going on. और कल से आज सुबह तक जब आराधना चालू थी, I'm looking at my notes, I'm looking at my computer. और मैं अपनी नोट्स को देख रहा था, अपने कंप्यूटर को देख रहा था. I'm saying, oh Lord. और मैं कह रहा हूँ, हे प्रभु, what am I getting into? मैं क्या कर रहा हूँ? And I felt the Holy Spirit tell me something very simple. और मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा मुझसे बहुत साधारण बात कह रहे हैं. And by the way, this is not anything new to me. This has been happening for like 17 years of my life. और ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये मेरे साथ जीवन के 17 साल मेरे साथ हो रहा है. As I was sitting down there and kind of have you been in this place where you've got like 100 things you want to speak, you don't know which one to start with? और आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपके पास 100 बातें हैं कहने के लिए, लेकिन आप निश्चित नहीं कर पा रहे कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है.
I was having that problem from yesterday. और कल से मुझे ये मुश्किल हो रही थी, Particularly to speak to pastors. और विशेषतः जब मुझे पासबानों से बात करनी है। If it was just some youth around and some kids around, that's not much of a problem. और अगर कोई जवान या कोई बच्चे होते थे तो उनसे बात करने में कोई मुश्किल नहीं थी। And here's what I felt the Holy Spirit whisper in my heart. और पवित्र आत्मा ने ये मेरे दिल में कहते हुए मैंने महसूस किया। I felt God telling me, Godfrey, और मैंने महसूस किया परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि गॉडफ्री, what matters to you the most in your life? और तेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? And what do I matter in your life? और तेरी जीवन में मेरी क्या अहमियत है? And what do you love doing? And what do you love seeing happen? और तुझे क्या पसंद है होते हुए देखना, या कुछ होता है तो तुझे क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा? And what I've done in your life, और जो मैंने तेरी जिंदगी में किया है, just speak that. वही उसी के बारे में बात कर। Don't speak anything that you think is fancy that you need to cover because it's a point and you have some Bible verses. Just speak what is in your heart that I have invested and done in your life. और इसलिए ऐसी बात मत कर जो तुझे लगता है कि अच्छा है, या तेरे पास पवित्र शास्त्र का कोई वचन है और तू उसे कहना चाहता है, उसे बताना चाहता है, ये बातें मत कर, बल्कि जो मैंने तेरी जिंदगी में रखा है, जो मैंने तेरी जिंदगी में निवेश किया है, उसके बारे में तू बता। Pretty much these last many years of ministry, that's been the most strong points of my life, to just talk out of my experiences of God, His kingdom and my role in that kingdom. और मेरी जिंदगी के सेवकाई के जो बीते हुए कुछ साल है, वही बहुत ज्यादा ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ परमेश्वर के बारे में। I've been in a pastoral role for the last 12 years. और पिछले 12 साल में पासबान रहा हूँ। And it's not been easy. और ये आसान नहीं रहा। Because point number one, I'm not theologically trained. और पहला मुद्दा ये है कि मुझे बाइबल में प्रशिक्षण नहीं मिला है। Like our privileged Bishop Sir and many of you. और जैसे हमारे बिशप सर हैं और आप में से कई लोग जिस तरह से प्रशिक्षित हैं। I started serving the Lord in a very raw and very simple way. और मैंने परमेश्वर की सेवकाई बहुत ही आसानी से और बहुत ही कच्चे तरीके से शुरू की। So I have some disadvantages of me. और मेरे कुछ ऐसे कमजोरियां हैं। Because when it comes to anything too theological, I'm lost. क्योंकि जब सिद्धांतों की बात आती है तो मैं गड़बड़ी में आ जाता हूँ। That's not my strength. और ये मेरी ताकत नहीं है। And when people start speaking of those, और जब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं, I become a quiet lamb. मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। But when it comes to practical experiences with God and with His Word and with my life and in ministry, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हुए अनुभव मेरी जिंदगी में, मेरी सेवकाई में, I'm a lion. I'm a lion, not a lamb. जब उनकी बात आती है तब मैं सिंह बन जाता हूँ और मेमना नहीं रहता। So this is what has been happening in my life these last 12 years of pastoring. और पिछले पासबान होने के पिछले 12 साल में यही मेरी जिंदगी में होता आया है। But I've been in ministry for the last 25 years. लेकिन पिछले 25 सालों से मैं सेवकाई में रहा हूँ। From the age of 15. और 15 साल की उम्र से। Into music ministry. और संगीत की सेवकाई में। Youth ministry. जवानों की सेवकाई में। And I've been into that. और मैं उसी में रहा हूँ। And from the time I've started my role in loving Jesus. और जब से मैंने अपना काम शुरू किया है यीशु मसीह से प्यार करने का, I've been part of all kinds of churches, big, small, medium, every kind of denomination, and the Pentecostals and the independent. I've been through all of these churches. और जब से मैंने शुरुआत की है तब से मैं हर तरह की कलीसिया में, बड़े छोटे अलग-अलग डिनोमिनेशंस के अलग-अलग तरह के चर्चेस कलीसियाओं में मैं रह चुका हूँ। And I've learned a lot. और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। I've learned a lot from the most traditional churches to the most Pentecostal churches. और जो सबसे पारंपरिक कलीसियाएं हैं, जो सबसे उनसे लेकर सबसे स्वतंत्र सबसे आजाद जो कलीसियाएं हैं, उन तक मैंने बहुत कुछ सीखा है। God has lots for us to learn from all of these people. और परमेश्वर के पास हम लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। And now I've come to a point in my life where I've taken the best of all these worlds. और अब मैं ऐसे जगह पर पहुंचा हूँ जहाँ पर इन सभी जगहों से, इन सभी दुनियाओं से मैंने कुछ लिया है। I'm taking the best of the Presbyterians, the Baptists, the Catholics, the Evangelicals. I'm taking all of these, the best of all of these. और जो प्रेस्बिटेरियंस है, जो बैप्टिस्ट है, जो कैथलिक्स है, इन लोगों में जो सबसे अच्छे मुद्दे हैं, उन सभी सबसे अच्छे मुद्दों को मैंने लिया है। And now spiritually I have my own library. और उन सबको इकट्ठा करके अब आध्यात्मिकता में मेरी खुद की लाइब्रेरी है। That's a little smart. और ये थोड़ी होशियारी की बात है। Just learn from everybody.
सभी लोगों से सीख लीजिए। And so as I'm understanding the role of a pastor, और जैसे मैं पासबान होने के कार्य को समझ रहा हूँ, till date, आज तक I don't know as much as God would want me to know. जितना परमेश्वर चाहता है कि मुझे पता हो, उतना मुझे नहीं पता। But I sure do know little bit that's enough to get me started. लेकिन मुझे इतना तो पता है, थोड़ा सा इतना पता है जितना मैं शुरुआत कर सकूं। And I don't think we should wait too much to try to learn everything to start to do something. और मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, उसके लिए रुकने की जरूरत है ताकि हम कुछ शुरू कर सकें। You know, I've been working with a lot of young people. और मैं कई जवान लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। And lots of young people do different kinds of courses. They do diploma courses, they do DTSs, they do BTHs. They keep on doing a lot of courses. और वो जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वो कई सारे कोर्सेज करते हैं, कई तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, DTH, BTH, कई तरह के डिप्लोमास कर लेते हैं। Sometimes when I speak to a few young people, और जब मैं कुछ जवान लोगों से बात करता हूँ, I find that there is a never-ending study in their life. और तब मैं पाता हूँ कि उनकी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला एक अध्ययन है। And I keep wondering, when are they going to start doing the work? और मैं सोचने लगता हूँ कि ये कब काम करना शुरू करेंगे। I think studies are great, मुझे लगता है अध्ययन करना अद्भुत है, as much as you can. और जितना आप कर सके उतना। But I don't think we should wait too long to say, I want to study everything, only then I'll start doing. और लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा रुकना चाहिए ये कहने के लिए मैं सब कुछ सीख लूंगा और फिर मैं काम करूंगा। There's lots that we can learn even when we start. और बहुत कुछ है हम शुरू करने के बाद भी सीख सकते Now हैं। let's get into the essence of pastoring. और जो पासबान होने में जो उसका सही मूल्य है, जो उसका सही अर्थ है, उसमें हम जाए। I'm very happy the ladies are not here today, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर औरतें नहीं हैं, because we can talk a lot of private practical things. और क्योंकि हम बहुत ही ऐसी निजी बातों पर बात कर सकते हैं। And also we're going to look at a lot of cultural things that has been a challenge and a difficulty and an issue for us. और हम ऐसी बातों पर भी बात करेंगे जो सामाजिक तौर पर हमारे लिए समस्या या मुश्किल बन चुकी है। I'd like to go through a few tips and background before we even enter into the pastoral role and into ministry and church, so that we'll have some foundation here. और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इस बात की पहचान आपको करा देना चाहता हूँ। Now, who's not married here? यहाँ पर कितने लोग विवाहित नहीं हैं? Okay, the Bible college students, right? That's fine. I don't want you to get married right now. और मैं नहीं चाहता Bishop will kill me. Okay, so everybody pretty much we're all married here, right? यहाँ पर कई लोग जो है वो अविवाहित है। Okay, for those of us who are married and who are pastoring, और हम में से वो लोग जो विवाहित है और जो पासबान है, I want us to understand that you and me as husbands, कि मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि आप और मैं पति होने के तौर पर, that we are not the only pastor for the church. कि हम कलीसिया के लिए केवल हम ही पासबान नहीं हैं। Did you know that your wife is also the church pastor? क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी भी कलीसिया की पासबान है? Did it ever strike your mind that your wife is also a pastor with you? क्या आपको कभी ये समझ में आया कि आपकी पत्नी भी आपके साथ पासबान है? Definitely, yes. God has called the husband to lead. हाँ, निश्चित ही परमेश्वर ने जो पति है उसे अगुवाई करने के लिए बुलाया है। But if our wives are not spiritually in the functioning of what God has called us, we are already starting to have problem. लेकिन अगर हमारी पत्नियां आध्यात्मिक तौर पर जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए बुलाया है, अगर वो नहीं कर रही, तो हम पहले ही मुसीबत में हैं। The next I want to be asking us, तो अगली बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, how healthy are we as husband and wife as we do ministry? और पति पत्नी होने के तौर पर हम कितने ज्यादा सामर्थ्य है सेवकाई में। Now when I say how healthy we are, I mean healthy from A to Z. और जब मैं कहता हूँ सामर्थ्य या अच्छे चंगे या अच्छे स्वास्थ्य में, तो मेरा कहने का मतलब है शुरुआत से अंत तक। I'm not asking whether you get fever and cold and cough every day. That's not what I'm asking. और मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको हर दिन सर्दी जुकाम या बुखार आता है, वो मैं नहीं पूछ रहा। I've got a whole big list of what I want to ask us this morning. और जो मैं पूछना चाहता हूँ उसकी पूरी यादी में बना कर, Maybe I'll mention a few things. और उस सूची में से मैं कुछ बातें बताऊंगा। How healthy are we in our communication and relationship in a respect manner with our spouses? और हमारे जोड़ीदार के साथ हमारे जो संपर्क करने का तरीका है, उसमें हम कितने स्वस्थ हैं?
when we speak to our spouses in public meetings, in the church, in the marketplace, in our relatives' homes, with small groups, wherever, when we are with our spouses, how do we speak to our spouses? Is it respectful? Is it dominating? Is it very spiritual? Or is it very relational in a godly manner? What's the mood? What's the atmosphere? और जब हम हमारी पत्नियों के साथ, हमारे जोड़ीदारों के साथ वार्तालाप करते हैं, शायद चाहे वो बाजार में हो, कलीसिया में हो या छोटे संघों में हो, तब हम उनसे जब वार्तालाप, उनसे संपर्क करते हैं, तो वो किस तरह से होता है? क्या वो आदरणीय होता है? क्या वो अधिकार में होता है? वो आध्यात्मिक होता है या क्या होता है? Does your wife give you a clear certificate for ministry? और क्या आपकी पत्नी आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट देती है आप सेवकाई करें इसलिए? You know, getting a certificate from a university or a Bible college, that's not much of a big deal. And you can get it. You can work hard and you can get it. You have to work hard. It's going to be tough, but you can get it. आप अपने महाविद्यालय से, आपकी यूनिवर्सिटी से आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है और वो आसान होता है, आसान सी बात होती है। आपको कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं लेकिन आपको वो मिल जाता है। Did you know it's even more difficult to get a certificate from your wife? लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी से आपको प्रमाण पत्र मिलना और ज्यादा मुश्किल है? And my question even for me today is, does my wife certify my ministry? और मेरा सवाल मेरे खुद से भी यही है कि क्या मेरी पत्नी मेरी सेवकाई को प्रमाण पत्र देती है? For me, every day when I get up in the morning, my personal analysis of my life and a radar or a gauge or a meter, whatever you want to call it, is when my wife looks at me and smiles and is happy with me. I pretty much think I'm on track. और जब मैं हर रोज सुबह उठता हूँ तब मेरी जिंदगी का ये अध्ययन होता है, ये माप होता है कि किस तरह से मेरी सेवकाई, मेरी जिंदगी चल रही है। वो मुझे तब पता चलता है कि जब मेरी पत्नी मेरी ओर देखकर हंसती है, वो मुस्कुराती है, खुश होती है, और तब मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। I've got up many mornings and I've looked at my wife's face and oh boy, I had all the information I needed for the day and even for the week. और जब कई सुबहों में ऐसा हुआ है कि मैं सुबह उठा हूँ और अपनी पत्नी का चेहरा देखकर मुझे पूरे दिन के लिए, पूरे हफ्ते के लिए जितनी जानकारी मुझे चाहिए उतनी सब मिल चुकी है। Now somehow, I don't know how, but somehow in our Indian culture, we men, we husbands, pretty much have a very different impression of our wives. और मुझे नहीं पता किस तरह से, लेकिन किसी तरह से हमारी भारतीय सभ्यता में हम भारतीय पतियों को हमारी पत्नियों के बारे में एक झलक होती है। Some of those impressions that we have, not all, some of those impressions that we have, और उनके बारे में एक पहचान, उसमें से एक पहचान ऐसी है, is absolutely not from this book. ये बिल्कुल भी इस किताब में से नहीं है। And if you want the list, I can email it to you. I don't want to talk about it here. और अगर उनकी सूची आप चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल भेज दूंगा। मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। I love talking to people before they get married. और जब लोगों का विवाह होता है उसके पहले उनसे बात करना मुझे पसंद है। And one of the questions I ask people before they get married, say, what would you think of a wife? What would you want your wife to do for you? और लोगों का विवाह होने से पहले मुझे उनसे सवाल पूछना अच्छा लगता है कि आप क्या चाहते हैं आपकी पत्नी करे? And 95% of the answers, और 95% लोगों का ये जवाब होता है, I want them to cook and take care of my kids. मैं चाहता हूँ कि वो खाना पकाए और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। And my response to that, और उनको मेरा कहना होता है, is India has a lot of good maids. You can get that. You don't need a wife. भारत में बहुत सारी नौकरानियां हैं, आप उनको रख सकते हैं, आपको पत्नी की जरूरत नहीं है। Just hire a servant, ask her to cook. Why would you need a wife for that? आप नौकर या नौकरानी रख लीजिए, आपको पत्नी की जरूरत नहीं है। You don't need a wife to cook. आपको पत्नी की जरूरत खाना पकाने के लिए नहीं है। You think the Bible actually meant that for a wife? और क्या आपको लगता है कि पवित्र शास्त्र ये कहती है पत्नी के बारे में? Our wives love to cook for us. हमारी पत्नियों को पसंद है हमारे लिए खाना No पकाना। doubt about it. उसमें कोई संदेह नहीं है। Where does it say that the husband is not supposed to cook? और यहाँ कहाँ पर लिखा है कि पति खाना नहीं पका सकता? Where does it say the husband's not supposed to wash the vessels? और कहाँ पर लिखा है कि पति ने बर्तन धोने चाहिए? Where does it say the husband's not supposed to change the diapers? और कहाँ पर लिखा है कि पति ने जो डायपर है वो नहीं बदलने चाहिए? It definitely says you can't breastfeed. हाँ, वो ये जरूर कहता है कि आप बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। Don't ever try that. और स्तनपान करने की कोशिश मत कीजिए। Minus that, और उसको छोड़कर don't ever mess around with the other points. जो दूसरे मुद्दे हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। Now, why am I speaking all these things? और मैं ये सारी बातों पर बात क्यों कर रहा हूँ?
Pastor Raymond was saying that if his wife's happy, he's happy. पास्टर रेमंड कह रहे थे कि अगर उनकी पत्नी खुश है तो वो खुश होते हैं। Do you take back that statement? Oh, yeah. Do you take it back? Oh, no. Oh, yeah. Okay. I thought it was just meant for the morning message. मुझे लगा वो केवल सुबह के उपदेश के लिए था। He said, if my wife's happy, I'm happy. वो कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी खुश है तो मैं खुश हूँ। I believe that. मेरा ये विश्वास है, I like that. मुझे पसंद है, I do that. मैं यही करता हूँ I want to go a little bit further after that. और उसके आगे मैं बढ़ना चाहता If हूँ। my wife's happy, I'm happy. मेरी पत्नी अगर खुश है तो मैं खुश हूँ। If we're both happy, the ministry is happी. अगर हम दोनों खुश हैं तो सेवकाई खुश है। Our ministry is not going to be healthy if either one of us are not healthy. हमारी सेवकाई तब तक स्वस्थ नहीं होगी जब तक हम दोनों मिलकर स्वस्थ नहीं है। Do we talk to our spouses about ministry and get approvals and talk plans and visions and desires? Or it's, I'm the boss, this is where we are going, follow me, pack your bags. और क्या हम अपनी पत्नियों से, हमारे जोड़ीदारों से हमारी सेवकाई के बारे में सहमति मांगते हैं, उनके साथ दर्शनों के बारे में बात करते हैं, या फिर क्या ये ऐसा है कि मैं बॉस हूँ, बैग पैक कर लो, हम जा रहे हैं। I love the tone, man. I love that tone. Just make that tone happen. That's it. Is that the way we behave? और क्या इस तरह से हम बर्ताव करते हैं? Do we talk to each other about whether it's a small thing or a big thing? Do we talk? और चाहे वो छोटी या बड़ी बात हो, क्या हम बात करते हैं उसके बारे में? I've been learning. I'm still learning, by the way. I've been learning these last many years to listen to my wife. और इतने सालों से मैं सीखता आ रहा हूँ और मैं अभी भी सीख रहा हूँ अपनी पत्नी की बात सुनना। Now let me tell you a secret. This is my life. और मैं आपको एक रहस्य की बात बता दूं, ये मेरी जिंदगी है। It's not Pastor Ray. ये पास्टर रे की जिंदगी It's नहीं, not Bishop Joseph. और ये बिशप के बारे में नहीं है। This is my confession. ये मेरी कबूली है। Every time हर बार I've never listened to my wife, जब कभी मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, I was in deep trouble. मैं बड़ी समस्या में फंस गया। Believe it or not, that's the truth. इस पे विश्वास आप करें या ना करें, यही सच है। And the Bible says that God has given us a helpmate. और जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें मददगार दिया है, Cooking may be part of it. और खाना पकाना शायद उसका भाग होगा, Nothing wrong with that. उसमें कुछ गलत नहीं है, But I think it's much more than that. लेकिन मुझे लगता है कि उससे कहीं बढ़कर है। And our wives become our strength. जब हमारी पत्नियां हमारा सामर्थ्य बनती And है, they become our support. जब वो हमारा सपोर्ट बनती है, That they become our fans. और वो हमारी फैन बनती है। There's no point in the whole church and the whole town becoming our fans and loving us and our wife going, और इसमें कोई अच्छी बात नहीं है जब पूरी कलीसिया, पूरा नगर हमारा फैन बन जाता है और हमारी जो पत्नियां हैं वो हमारे और ऐसे मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। and if anybody talks to our children about us, और कोई हमारे बच्चों से हमारे बारे में बात करे and they say, my dad, और वो कहते हैं मेरे डैड, और वो हंसते हैं। you think that's a good testimony? और क्या आपको लगता है ये अच्छी गवाही है? That's not how life should be for us. और इस तरह से हमारे लिए जिंदगी नहीं होनी चाहिए। Are we happy and satisfied with each other? क्या हम एक दूसरे के साथ खुश और तृप्त हैं? In our relationship with each other? एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते में Do we have a trust relationship? क्या हमारा भरोसे का रिश्ता Do we है? have a transparent relationship? क्या हमारा रिश्ता पारदर्शक है? Now this is all before we go into ministry. और ये सब सेवकाई में जाने के पहले है। I want to make sure that we understand these before ministry, because if these are not understood and if they are not foundationally laid and done according to how God wants it to be, everything else built on this is not going to last. और अगर हम ये सेवकाई में जाने से पहले हम इस बात को अगर न समझ ले, इसकी बुनियाद ना डाल दे जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि वो हो, तो आगे बढ़ने में कुछ होने वाला नहीं है। One of the questions I ask husbands और एक सवाल जो मैं पतियों से पूछता हूँ who come to our church, जो हमारी कलीसिया में आते हैं, and even when I counsel other people who come and ask for help, और जब दूसरे लोग जो मेरे पास सलाह के लिए आते हैं, जब उनको सलाह देता हूँ, especially if they're real good Christians, अगर वो अच्छे मसीह है तो उनसे ये बात मैं पूछता हूँ। I look at the husband, मैं पति को देखता हूँ, even sometimes pastors, और कई बार पासबान भी होते हैं, and one of the questions when I talk to them, और एक सवाल जब मैं उनसे बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ, which they freak out with when I ask them, और जब मैं उनसे वो सवाल पूछता हूँ तो वो अचंभित रह and जाते I हैं, don't think too many people ask them that question. और मुझे नहीं लगता कि कई लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे होंगे। I look at them and ask them, how is your sex life with your wife? और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी पत्नी के साथ आपका लैंगिक जिंदगी कैसी है?
there's like 20 seconds of silence. और उन वहां पर 20 सेकंड का वो 20 सेकंड तक चुप रह जाते हैं Because they thought that was not a very biblical question to ask. और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बाइबल के आधार पर सवाल नहीं है I don't know whether they've not read that in the Bible और मुझे पता नहीं कि शायद उन्होंने बाइबल में ये पढ़ा नहीं होगा or they're ignoring it. और या उस पर वो ध्यान नहीं देते How is our sexual relationship, our emotional, our relationship with our wives? और हमारी पत्नियों के साथ हमारे लैंगिक संबंध हमारे जो भावनात्मक रिश्ता है वो कैसा है Do we have longings and desires that our flesh urges us to have? और क्या हमारे ऐसी कोई इच्छाएं हैं जो हमारा देह हमारा मांस हमें हमारे अंदर पैदा करता है As men we approach our wives, और मर्दों की तरह पुरुषों की तरह अपनी पत्नियों के पास हम जाते हैं we satisfy ourselves sexually और लैंगिक तरह से हम अपने आप को खुश कर देते हैं and we leave our wives dry. और हमारी पत्नियों को हम सूखा छोड़ देते हैं Is that healthy? और क्या ये स्वस्थ है Now why am I speaking this? तो मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ For the last several weeks and months, I'm talking to a very dear friend of mine who used to be a pastor. और पिछले कुछ हफ्ते कुछ महीनों से मैं अपने एक बहुत करीबी दोस्त से बात कर रहा हूँ जो पासबान हुआ करते थे And that marriage is on the rocks. और उनका जो विवाह है वो टूटने पर आया है And his wife once just left him and went away. और एक दिन उनकी पत्नी बस उन्हें छोड़कर चली गई And with a lot of compulsion, she's come back again. और बहुत जोर जबरदस्ती के बाद वो वापस आई है What's the reason why she left? और वो जानना चाहता है कि वो क्यों चली गई He's not satisfying her sexually. वो उनको लैंगिक तरह से तृप्त नहीं कर रहा But ministry is going on fine. लेकिन सेवकाई अच्छे से चल रही है God is there. परमेश्वर वहां पर है But He's not there. लेकिन वो वहां पर नहीं है You see, we have a role to play in our families. देखिए हमारी परिवारों में हमारा कुछ काम है And as pastors and leaders, sometimes we don't even know who to go and speak these things to. और पासबान और लीडर अगुवा होने के तौर पर हम जानते भी नहीं है बात हम किससे करें These last many weeks, I'm counseling him on the phone and giving him sex classes. और पिछले कुछ हफ्तों से फोन पर मैं उन्हें लैंगिक रिश्ते पर उनको क्लासेस दे रहा हूँ Is that my responsibility? और क्या ये मेरी जिम्मेदारी है Absolutely, it is my responsibility because I love him. हाँ बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ If I don't take it, who's going to help him? अगर ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा You see, the whole role of pastoring is a father figure. और देखिए पासबान होने का जो पूरा काम है वो एक पिता का कार्य निभाना है We need to have that authority, we need to have the love and the concern and the care in every area towards people. और हमें हर हिस्से में लोगों के प्रति वो प्यार वो ध्यान रखना और वो फिक्र होने की जरूरत है We can only lead a healthy church if we are healthy ourselves. और हम एक स्वस्थ कलीसिया की अगुवाई तभी कर सकते हैं कि अगर हम खुद स्वस्थ हो Can an unhealthy pastor lead a healthy church? क्या एक अस्वस्थ पासबान एक स्वस्थ कलीसिया को चला सकता है It's not possible. ये संभव नहीं है We can only give what we have. हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं We can only explain what we experience. हम वही समझा सकते हैं जिसका अनुभव हमने किया है And here's another important one to know. और जो पहला मुद्दा है अहम मुद्दा है जो We can only take people as much as we have gone. और हम लोगों को सिर्फ वहीं तक ले जा सकते हैं जहां तक हम पहुंचे हैं We cannot lead people to a destination that we ourselves have not gone. और हम लोगों को ऐसी जगह पर नहीं ले जा सकते जहां पर हम खुद नहीं पहुंचे हैं I want to give us a little bit of a small example. और मैं एक छोटा सा उदाहरण लोगों को आपको देना चाहता हूं In some parts of the world, और ये वचन में से नहीं है I don't know whether it's in the US, but I believe it's probably also in the US in some places maybe. और मुझे नहीं पता ये अमेरिका में है या नहीं लेकिन मेरा मानना है कि कुछ जगहों पर वहां पर वो होगा I was told that when big companies are hiring employees, और मुझे बताया गया था कि जब बड़ी कंपनियां जो होती है जब वो नौकरी पर लोगों को रखती है when they're about to give the husband a job in the company, और जब वो पति को कंपनी में नौकरी देने वाले होते हैं everybody goes through an interview, right? और सब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं And some of these companies, और इनमें से कुछ कंपनियां हैं part of the interview with the man, और जो पुरुष के साथ जो मुलाकात होती है listen to me carefully, और उसमें से सुनिए part of the interview with the man, और जो पुरुष है उसके साथ जो इंटरव्यू है उसमें से एक हिस्सा guess who they asked
to come along with the man. और सोचिए उन्होंने किसको बुलाया होगा उस पुरुष के साथ आने के They'll लिए। ask the man to bring his wife also for the interview. उन्होंने उस पुरुष को अपनी पत्नी को भी साथ लाने के लिए कहा था इंटरव्यू के लिए। Is there any connection? और यहाँ पर कोई संबंध है या The नहीं? husband is applying for the job. जो पति है वो नौकरी के लिए आया है They ask the wife to also come with the husband for the interview. और वो कहते हैं कि पत्नी भी पति के साथ इंटरव्यू के लिए आए। If the wife is applying for the job, अगर वो पत्नी नौकरी के लिए आई है, they'll ask the husband to accompany her. वो कहते हैं कि वो अपने पति को भी साथ ले आए। Now you know why they do this? और आपको पता है ये ऐसा क्यों करते हैं? They want to find out वो जानना चाहते हैं how is the relationship between husband and wife before they employ the person. और वो जानना चाहते हैं कि वो पति और पत्नी का रिश्ता कैसा है उस व्यक्ति को नौकरी पर रखने से पहले। And as they talk with the person who's going to get the job, और जैसे जो व्यक्ति नौकरी पर रहने वाला है उनसे उन्हें नौकरी पर रखने से पहले they on and off keep looking at the expressions of the spouse. वो जो जोड़ीदार है उसके जो चेहरे पर जो हाव भाव है उन्हें वो देखने लगते हैं। They don't ask much questions to the spouse, और जो जोड़ीदार है उन्हें ज्यादा सवाल नहीं पूछते वो। but there'll be a panel of people interviewing, लेकिन जो लोग मुलाकात ले रहे हैं वहाँ पर कई सारे लोग बैठे होते हैं। and all these guys will be taking down notes, looking at the wife's expressions every time a question is asked to the husband. और हर जब कभी पति से सवाल पूछा जाता है वो पत्नी की ओर उनका चेहरा देखते रहते हैं। At the end of the interview, और इंटरव्यू के अंत में they don't give the guy the job based on his qualifications and experience. वो जो बंदा है उसे उसके क्वालिफिकेशंस उसकी जो क्षमता है उस पर निर्भर करते हुए नौकरी नहीं देते। They will discuss, वो आपस में बातचीत करेंगे, add all the points of the expression of the wife, और जो पत्नी के जो अलग अलग एक्सप्रेशन थे उसके वो पॉइंट्स को साथ में मिला देते हैं, and that will determine whether the person is going to get the job, not because of the qualification or the experience. और वो निश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को नौकरी मिलने वाली है या नहीं, उसके जो क्वालिफिकेशन है उसकी क्षमता है वो नहीं। Now what's the moral of the story? तो अब कहानी से सीख क्या मिलती है? Spiritually it works the same in our families with our spouses. आध्यात्मिक तौर पर भी हमारी जिंदगी में भी यही काम करता है हमारी जोड़ीदारों के साथ। If we are not healthy with each other, अगर हम एक दूसरे के साथ स्वस्थ नहीं हैं, we are not going to be able to lead a healthy congregation or a ministry. हम एक स्वस्थ कलीसिया या सेवकाई नहीं चला पाएंगे। 1 Timothy 3:5. और पहले तिमुथियुस का पत्र 3 अध्याय 5वां वचन। That's a very popular verse. और ये बहुत ही नामांकित ऐसा वचन है। 1 Timothy 3:5. पहले तिमुथियुस का पत्र उसका 3 अध्याय वचन 5। For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? I was talking about the certification from the wife. और मैं जो पत्नी है उनसे प्रमाण मांगने की बात कर रहा था। I think before we move out into ministry, और मुझे लगता है सेवकाई में जाने से पहले can we start a ministry at home? क्या हम घर पर सेवकाई शुरू कर सकते हैं? Can we prove ourselves to our spouses and our kids? और क्या हम अपने आप को हमारे पत्नियों को और हमारे बच्चों को खुद को सिद्ध करके दिखा सकते हैं? Do we have control over our own lives with our family? क्या हमारी खुद की जिंदगी हमारे परिवार के साथ हमारी जो जिंदगी है क्या उस पर हमारा नियंत्रण है? Or do we just think that we have control? क्या सिर्फ हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण है? Did you know that having control and assuming you're having control is two different things? और आपको पता है कि नियंत्रण करना और ऐसे सोचना कि आपके पास नियंत्रण है ये दो अलग-अलग बातें हैं। And so as husband and wife and as kids and as family, if there is health, then there is wealth in ministry and the growth of the church and what God is wanting us to do. तो पति पत्नी और बच्चे एक परिवार होने के तौर पर अगर परिवार में स्वास्थ्य है तो जो सेवकाई है और कलीसिया है उसमें अमीरी होगी। I want to talk about following the policy of the kingdom. और मैं जो राज्य है उसकी पॉलिसी के पीछे चलने की बात कर रहा हूँ। In our roles as pastors and leaders, और हमारा जो काम है पासवान और अगुवा होने के तौर पर, does the kingdom of God have some rules and regulations for us? और क्या परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए कुछ नियम है? Definitely it does have. हाँ कुछ नियम है। I call them policies. और उन्हें मैं पॉलिसी कहता हूँ। 2 Timothy chapter 2 verse 5.
और दूसरे तिमुथियुस का पत्र उसका दूसरा अध्याय वचन 5। 2 Timothy 2:5. दूसरे तिमुथियुस का पत्र दूसरा अध्याय वचन 5। Please note all these verses I'm reading from the NLT because I just love the explanation that is simplified in it. और जो NLT जो वर्जन है उसमें से मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये बात आप जान लीजिए क्योंकि उसमें जो वचन है वो बहुत ही आसानी से बताए गए हैं। 2 Timothy 2:5. दूसरे तिमुथियुस का पत्र दूसरा अध्याय वचन 5। It says, follow the Lord's rules for doing His good work, for doing His work. Just as an athlete either follows the rules or is disqualified and wins no prize. फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। Following the Lord's rules for doing His work. तो जो परमेश्वर के नियम उसके काम करने के लिए उनका पालन कीजिए। And those rules apply both on the field, in the church, in our leadership, in our personality, in our families, everywhere. It applies. These rules apply everywhere. और वो नियम लागू होते हैं कार्य क्षेत्र में, हमारी कलीसिया में, हमारी निजी जिंदगी में, हमारी पारिवारिक जिंदगी में, हर जगह पर वही नियम लागू है। How well versed are we with some of the policies and the rules of the kingdom in our functionality towards ministry? तो सेवकाई के और हमारी जो काम है, हमारा कार्य है, उसमें जो लागू होने वाले राज्य के नियम है उनको हम कितने अच्छी तरह से जानते हैं। Most of the time when I look at my life, I follow some of my own policies because I just like it. और जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, अपनी जिंदगी में मैं अपने खुद के कुछ नियमों का पालन करता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। Now some of our policies might not be bad. It's not bad. और हमारी कुछ नियम जो होंगे वो शायद बुरे नहीं होंगे। The question I think we need to be asking ourselves is, it's not whether our policies are bad or good, but are our policies godly? लेकिन जो सवाल हमें पूछना है वो है कि हमारे जो नियम है वो अच्छे हैं या बुरे, वो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि हमारे नियम परमेश्वर के ओर से है या नहीं। The Bible also says not everything that is good is profitable, right? लेकिन बाइबल कहता है कि जो हर बात जो अच्छी है वो फायदेमंद हो, ये ऐसे तो नहीं है। So we don't have to wait for something to become bad to get scared of it and stop doing it. तो इसलिए हमें रुकने की जरूरत नहीं कि कुछ बुरा हो और फिर हम उससे डर जाए और वो रोक दे। There are a lot of good things that we do are still not profitable in the eyes of the policy of the kingdom of God. ऐसी कई सारे बातें हैं जो हम करते हैं जो जो राज्य के नियम है उनके अनुसार वो अच्छी नहीं है। Now why is it important to follow His policy and rules and not ours, even though they are good? और ये महत्वपूर्ण क्यों है कि उसके नियमों का पालन करना चाहे और हमारे नियमों का नहीं वो अच्छे हो फिर भी? I think the answer lies in a very simple question I'm going to ask you. और जो सवाल मैं हमसे पूछने वाला हूँ उसी में इसका जवाब है। Whose work are we doing? हम किसका काम कर रहे हैं? Whose work are we doing? हम किसका काम कर रहे हैं? Our work or we're doing God's work? क्या हम खुद का काम कर रहे हैं या परमेश्वर का? God's work, right? Are we clear about that? क्या हम उसके बारे में स्पष्ट हैं? Okay, if we're clear about God's work, तो अगर हम परमेश्वर के काम के बारे में स्पष्ट है, we live by the rules and regulations of God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के नियमों के अनुसार जिएंगे। If I join a company X, और अगर मैं X नामक एक कंपनी में नौकरी करने लगता हूँ, whose rules and policies I use? और मैं किसके नियमों का पालन करूंगा? Company X, right? जो कंपनी का नाम X है उसके नियमों का। Can I be an employee of company X and follow company Y's rules and policies? और क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि कंपनी X का मैं के पास मैं नौकरी करूँ, उनका मैं मुलाजिम हूँ और कंपनी Y का मैं नियमों का पालन करूँ? Even though company Y is also a company, और कंपनी Y कंपनी है फिर भी it also might be a company that is similar to company X, और चाहे वो शायद वो ऐसी कंपनी होगी जो कंपनी X की तरह ही है, but it is still not the policy of company X. लेकिन फिर भी उसके नियम कंपनी X के नियम नहीं है, And that will disqualify me. और वही मुझे रोक देगा, I will not get promoted और मुझे बढ़ती नहीं मिलेगी, because I am not showing faithfulness to their policy. और क्योंकि मैं उस पॉलिसी को उस नियम के प्रति विश्वास योग्य नहीं हूँ। We are doing the kingdom work. हम राज्य का काम कर रहे हैं। We only follow the kingdom's rules and policies. हम केवल राज्य के नियमों का पालन करते हैं। However good we think our policies and rules are, और चाहे हम कितना भी सोचे कि हमारे नियम कितने भी अच्छे हो,
it's not going to help us. ये हमारी मदद नहीं करने It's वाला। going to stop and block our progress and our work and what vision and plan God has for us. ये हमारे काम में रुकावट डालेगा और जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए है उसमें वो बाधा डालेगा। Another question I want to ask us this morning. और दूसरा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, Do we have the fear of the Lord in our ministry, our work and our lives? और क्या हमारी जिंदगी में, हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर का भय है? Proverbs chapter 1 verse 7. नीति वचन का पहला अध्याय वचन 7। Proverbs 1:7. नीति वचन का पहला अध्याय वचन 7। Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Only fools despise wisdom and discipline. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। Psalm 111 verse 10. और भजन संहिता 111 और वचन 10। It says, reverence for the Lord is the foundation of true wisdom. The rewards of wisdom come to all who obey Him. Praise His name forever. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहे। I love these verses. और ये वचन मुझे पसंद है। This is the answer to most of our issues in our life. और हमारी जिंदगी में जो कई सारे मुसीबतें हैं, कई सारी मुश्किलें हैं, उनका ये जवाब है। Especially before we enter into ministry or involved in ministry. और खास करके सेवकाई में जाने से पहले The fear of the Lord is the beginning of knowledge. परमेश्वर का भय ये बुद्धि की शुरुआत है। Sometimes when I look back in my life, कई बार जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता हूँ, and when I look at all the wrong things I've done in ministry, और जो कई सारे गलत बातें जो मैंने अपनी सेवकाई में की हैं, and the bad things I've done in ministry, और जो बुरी बातें मैंने अपनी कलीसिया or the unwise things I've done in ministry, या फिर जो अज्ञानी जो बातें मैंने अपनी सेवकाई में की हैं, I used to keep asking myself, why have I done all these things? और मैं खुद को पूछते रहता था कि मैंने सारी बातें क्यों की। Simple answer. आसान सा जवाब है, I didn't have what it takes to have the fear of God. और मेरे पास वो नहीं था जिसकी जरूरत है परमेश्वर का भय रखने के लिए। Because if I had to fear God, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर का भय रखना होता, the Bible tells me I'll get wisdom and knowledge. तो बाइबल कहती है कि मुझे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी। And that wisdom and knowledge that I get out of fearing God will help me not to make foolish decisions in life. और परमेश्वर के भय रखने से जो मुझे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी, वो मेरी सहायता करेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में अज्ञानी ऐसे काम ना करूं। And that reverence for God creates the foundation for my wisdom to function in what God has in His policies and His rules in my life towards my ministry. और परमेश्वर का भय रखने से मुझे सहायता मिलती है, वो बुद्धि जो मुझे परमेश्वर से मिली है उसको उसे काम में लाने के लिए, ताकि परमेश्वर के राज्य के नियम है वो काम में आ सके, उनके अनुसार मैं अपनी सेवकाई और कलीसिया में रह सकूं। I don't know how many times I've made foolish decisions in ministry. और मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार अपनी सेवकाई में अज्ञानता के या मूर्खता के ऐसे काम किए हैं। I thought they were good decisions. मुझे लगा कि वो सही फैसले हैं, I thought they were effective. और मुझे लगा वो काम करने वाले हैं। But you see, those decisions were based on my wisdom and my intellect and my super behavior. लेकिन वो जो फैसले थे वो मेरी होशियारी, मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान पर निर्भर थे। That never came out of the fear of the Lord. वो परमेश्वर के भय से नहीं आए थे। And that's the reason why I got a little bit messed up in places. और इसीलिए कई जगहों पर मुझसे गलती हुई। What drives our work, our ministry, our lives? What drives it? और हमारे काम को, हमारे जिंदगी को क्या चलाता है? Does our ministry get driven by our money? और क्या हमारी सेवकाई हमारे पैसे के द्वारा चलाई जाती है? Does our ministry get driven by our instincts and our talents? और क्या हमारी सेवकाई हमारे जो क्षमता है, हमारे जो सोच है उसके मुताबिक चलती है? Does our ministry get driven by our intelligent, educated people that we have? और क्या हमारी सेवकाई जो होशियार, जो शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हमारे पास है, उनके मुताबिक चलती है? In Psalm 111 verse 10, the last part of it reads, the rewards of wisdom come to all who obey Him. और भजन संहिता का 111वां अध्याय वचन 10 में कहता है कि जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। The rewards
the blessing, the good gifts comes to those who obey him. उसके आशीष, उसके भेंट, वो जो अच्छी बातें हैं वो उनको मिलती है जो परमेश्वर का भय रखते हैं। Are we understanding that obedience क्या हम उस आज्ञाओं के पालन को समझ रहे हैं as we fear God? जिसे हम परमेश्वर का भय रखते हैं? Are we understanding who we are in that fear? क्या हम समझ रहे हैं कि उस भय में हम कौन हैं? What do we understand as our role in our shepherding people? और जब हम लोगों के चरवाह होते हैं तो उस काम में हम क्या समझते हैं? The whole role that God has given us, being shepherds for people. और जो पूरा काम जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है चरवाह होने का, What have you understood in your heart of who a shepherd is? और आपकी जिंदगी, आपके दिल में आपने क्या समझा है पूरी तरह से कि चरवाह होना क्या है? Have you actually asked yourself, what is the real meaning of a pastor or a shepherd? What is that real meaning? I want to know a real meaning for myself personally. Have you asked yourself that question? और क्या आपने खुद से कभी ये सवाल पूछा है कि पासबान होना, चरवाह होने का सही अर्थ, सही मतलब क्या है? क्या आपने अपने निजी तौर पर अपने आप से सवाल पूछा है? Or are we functioning in this role as a mere title? या हम इस काम में केवल एक शीर्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं? Or as a designation? या केवल एक नाम के लिए? You know, these last many years in my walk with God and in ministry, और पिछले कई साल परमेश्वर के साथ मेरे चलने में और सेवकाई में I've come across sometimes a few men of God or pastors or preachers or whatever you want to call them. और मैं कुछ परमेश्वर के दास, परमेश्वर के कुछ सेवक और परमेश्वर के कुछ पासबान, जो कुछ आप उन्हें कहना चाहे, उनसे मैं मिला। By chance, if you don't address them as pastor, they get very angry. और अगर आपने गलती से उन्हें पासबान कहकर नहीं पुकारा तो वो गुस्सा हो जाते हैं। They really get very angry and take it very personally. और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बहुत निजी तरीके से ले लेते हैं। Personally, I think that's a problem. और मुझे लगता है कि वो समस्या है। We should be getting worried about functioning out of the will of God and not getting worried about somebody calling us pastor by our names and designations or anything else. और मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा में काम कर रहे हैं या नहीं, और ना कि कोई हमें पास्टर कहता है या जो भी हमारा नाम होगा उसके मुताबिक हमें बुलाते हैं या नहीं। There's nothing wrong in being calling our designations. और हमारे जो शीर्षक है उन शीर्षकों के मुताबिक हमें बुलाया जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। But is that what our focus is on? लेकिन क्या हमारा ध्यान इसी पर है? Is that where our worry and concern is on? और क्या हमारा जो ध्यान है, क्या हमारी चिंता का मुद्दा वही है? And are those titles and designations worrying us and controlling us? और क्या वो शीर्षक, वो नाम हमें चिंतित करते हैं? Have you thought about what's it going to cost you in your role as a shepherd? और क्या आपने सोचा है कि आपका चरवाह होने के काम में क्या आपको किस बात का महत्व है? What's going to be your loss? और आप किस में कुछ गवाएंगे? Most of us as pastors, most of the time, knowingly or unknowingly, we pretty much always want to know what's going to be the gain. और कई बार पासबान होने के तौर पर हम जानते हुए या शायद न जानते हुए हम ये सोचते हैं कि इसमें से हमारा फायदा क्या होगा। And bless our hearts, God always loves us to bless us and give us gain. और परमेश्वर हम हमेशा चाहता है कि वो हमें आशीषित करे और हमें फायदा दे। There's no doubt of that. और इसमें उसमें कोई भी संदेह नहीं है। But did we also know there's something called loss? लेकिन क्या हम जानते हैं कि नुकसान के नाम का भी कोई बात है? Did you know that every business has a loss and a profit? क्या आप जानते हैं कि हर व्यवसाय में, हर धंधे में नुकसान और फायदा दोनों है? I don't think there is any business that only functions on a profit without a loss. और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यवसाय है जो केवल फायदे पर चलता है और नुकसान पर नहीं। We are in the Lord's business. हम परमेश्वर के व्यवसाय में हैं। And there is going to be some losses. और वहां पर कुछ नुकसान होंगे। Are we aware of those losses? क्या हम उन नुकसानों के बारे में सचेत हैं? Do we know how much it's going to cost us? और क्या हम जानते हैं कि उसका मूल्य कितना है? Are we prepared for that? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? Or when the losses come, we will quit and run. या जब जो नुकसान है वो आएंगे तब हम हार मानकर भाग जाएंगे। So we need to take some time to actually remind ourselves and ask ourselves, what is the role that we are playing
as a shepherd in our ministry. और इसीलिए हमें थोड़ा वक्त निकालना है, थोड़ा सोचना है कि हम वो महत्व क्या है, मतलब क्या है चरवा होने का सेवकाई में। The next, अगली बात, knowing what is expected of you personally in that role. और उस कार्य में जो आपसे निजी तौर पर जो उम्मीद रखी जाती है उसे जानना। Did you know that as we function in this role and this call, और जैसे इस हॉल में हम इस काम यहाँ पर काम करते हैं, in this call, इस बुलावे में जब हम काम करते हैं, in this function of our call that God has called us ministry, और ये जो कार्य है जो हमें बुलावा है परमेश्वर की सेवकाई का, did you know that God has an expectation? और क्या पता है परमेश्वर की कुछ उम्मीद है? God has some trust that He's placed in us. परमेश्वर का कुछ भरोसा है जो उसने आप पर रखा है। He has some plans for us. उसकी कुछ योजनाएं हैं। He has a heart for us. उसका एक दिल है आपके लिए। Apart from God, did you know that even man has an expectation in us? और परमेश्वर के अलावा क्या आप जानते हैं मनुष्य का भी आपसे कोई उम्मीद है? His desires, उसकी कुछ इच्छा, His ambitions, उसके कुछ सोच, His ideas, उसकी सोच। We've got two sides of people looking on us and looking at us and expecting from us. और हमारे पास लोगों के दो हिस्से हैं जो हमारे पास देख रहे हैं, हमारी ओर देखकर उन हमसे कोई उम्मीदें रख रहे हैं। And if you've not realized the intensity of these expectations, I think it's time that we start to think about this in a very serious way with God's wisdom. और मुझे अगर आपने अब तक इन उम्मीदों के महत्व को आप तक जाना नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये सोचने की जरूरत है, गंभीरता से इसके बारे में सोचने की जरूरत है। Now, one of the reasons why I'm even talking about this, और एक कारण कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, is I've seen sometimes people who don't understand the expectation of man and God, they run into a rush into ministry and then get stuck. और क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग जो परमेश्वर की और लोगों के मनुष्य की जो उम्मीदें हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं और दौड़ते हुए जो खाई गड़बड़ी से जो सेवकाई में दौड़े चले जाते हैं, कई बार वो अटक जाते हैं। The Bible very, very clearly and very sweetly says that if you want to be a follower of Christ, you have to count the cost, right? और बाइबल कहती है बहुत मधुरता से, ये बाइबल हमें बताती है कि अगर आपको परमेश्वर यीशु के पीछे चलना है तो आपको मूल्य जानने की जरूरत है। If we have not counted the cost, we are fools. अगर हमने मूल्य नहीं गिना है तो हम मूर्ख हैं। Before building a building, और इमारत बनाने से पहले don't we get a quotation for the building? और हम इमारत का जो जितना मूल्य होगा हम उसे वो जान लेते हैं। Don't we get to understand how much it's going to cost us to build this building? और हम जान लेते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने की कीमत कितनी होगी। Will we have the intention to start something when we don't have the money to build it? और अगर हमें कोई इमारत बांधनी हो और बनानी हो और हमें अगर पता नहीं हो कि उसकी कीमत कितनी है तो क्या हम उसे बनाएंगे? Now I'm not talking about the miraculous things Jesus can do even when we don't have the money to do something. I'm not talking about that. और मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा कि जब हमारे पास पैसे ना हो और फिर भी हम कुछ बनाते हैं और परमेश्वर उसका जरूरत को पूरा कर देता है चमत्कार करके, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। In both circumstances, we have to trust and that dependency on God is vital. और दोनों बातों में भी, दोनों परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पर हमारी निर्भरता रखनी है और वो महत्वपूर्ण है। But on a normal general basis, God gives us wisdom. लेकिन कई बार परमेश्वर जो है वो हमें ज्ञान देता है। To count the cost before we start something. और कुछ बनाने से पहले, शुरुआत करने से पहले उसकी कीमत जानने के लिए। There's a cost to shepherding and pastoring people. लोगों को या परमेश्वर के भेड़ों को उनका चरवा बनने के लिए, उनका पासबान बनने के लिए एक कीमत है। And when we don't understand that cost, और जब हम वो कीमत नहीं जानते, is when we start murmuring in our ministries. और उस वक्त हम हमारी सेवकाई में शिकायत करने लगते हैं। Sometimes when I hear pastors, और कई बार जब मैं पासबानों को सुनता हूँ,
They discuss about their members. और वो अपने जो मेंबर है उनके बारे में वो बात करने लगते हैं। And sometimes I hear these conversations. और मैं ये वार्तालाप सुनता हूँ। Oh my goodness me, I've got problematic families in my church. मेरे कलीसिया में ऐसे मुसीबतें खड़े करने वाले Oh my परिवार हैं। goodness, I've got troublemakers in my church. और मेरी कलीसिया में ऐसी तकलीफ देने वाले लोग हैं। I'm praying God will take them out of the church. और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें कलीसिया से बाहर ले जाए। Now here's the question to myself. यहाँ पर सवाल है मेरे खुद के लिए, What has God placed me there for? परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर क्यों रखा है? What's my role? मेरा काम क्या है? My role is to get dirty people and clean them up. मेरा काम है गंदे लोगों को लेना और उन्हें साफ करना। Now I don't clean them up. अब मैं उन्हें साफ नहीं करता, God cleans them up, परमेश्वर उन्हें साफ करता है। but I'm the broom and the brush for God. लेकिन मैं ही झाड़ू हूँ और मैं ही ब्रश हूँ परमेश्वर के लिए, I'm the tool, I'm the vessel. और मैं ही वो साधन हूँ, मैं ही वो पात्र हूँ। So He uses me to clean people up. तो वो मेरा इस्तेमाल करता है लोगों को साफ करने के लिए। We can't change people. हम लोगों को नहीं बदल सकते, He changes them with us and through us and by us. वो उन्हें बदलता है हमारे द्वारा, हमारा इस्तेमाल करके। So as pastors, if we are expecting ready-made, godly, spiritual, holy, religious people to come and be our congregation, if we are expecting that, तो पासबान होने के तौर पर अगर हमारी उम्मीद ये है कि हमारे कलीसिया में आध्यात्मिक धार्मिक ऐसे अच्छे लोग आएंगे, let's assume for the argument's sake, God does give us that desire of our heart. और चलिए मान लीजिए कि परमेश्वर हमारी दिल की मुराद पूरी कर देता है। Let's assume God gives us wonderful, holy, great, beautiful people that are not troublemakers in our ministry. और मान लीजिए कि परमेश्वर हमें ऐसे लोग देता है जो अच्छे हैं, अद्भुत है, सुंदर है और जो हमारी सेवकाई में कोई मुसीबत, कोई बाधा नहीं डालते। Now here's my question. यहाँ पर मेरा सवाल है, At least for myself. मेरे खुद के लिए, Then what is my role after that? तो उसके बाद मेरा काम क्या है? With all these holy, good, nice, troubleless people, what is my role that I play to these wonderful people? तो फिर ये अद्भुत पवित्र लोग हैं जो बिल्कुल तकलीफ नहीं देते, तो मेरा काम क्या है इनके प्रति? I might think I'm ready for retirement. मुझे लगता है कि मैं निवृत्ति के लिए तैयार हूँ। I don't have any work with them. मेरा कोई काम ही नहीं है उनके साथ। They're all nice people. वो बहुत अच्छे लोग हैं। They're all ready to go plant a church. और वो तैयार है जाकर कलीसिया लगाए। You see, the whole aspect of the kingdom and the church is that we take care of every single kind of person. और कलीसिया का पासबान होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका वो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हर एक व्यक्ति का ध्यान रखें। Troublesome people will be in your church. और तकलीफ देने वाले लोग आपकी कलीसिया में होंगे। Unholy people will be in your church. और पवित्र लोग आपकी कलीसिया में होंगे। Ungodly people will be in your church. और धार्मिक लोग आपकी कलीसिया में होंगे। And what are you going to do then? और आप क्या करने वाले हैं फिर? You are supposed to function in the calling, in the anointing, in the role, in the teaching, in the fathering, in the pastoring, and in the encouraging and empowering to these people. और आपको काम करना है अभिषेक में, उस बुलावे में, पासबान होने के और पिता के कार्य को आपको पूरा करना है इन लोगों के प्रति। The Bible says you're a pastor and a teacher. That's your role and call. और बाइबल कहती है कि आप पासबान और एक शिक्षक है, आपका ये बुलावा है। Pastor Ray yesterday or day before was saying, when you share the gospel with someone and they don't get it, what do? और पास्टर रे कल या परसों ये कह रहे थे कि अगर आप किसी को सुसमाचार देते हैं और उसे नहीं लाते तो आप क्या करते हैं? What do, Pastor Ray? Share it again. Show it again. आप फिर से देते हैं। If they're not getting it, what do? Again. Again. अगर आप वो सुसमाचार को नहीं मान रहे तो आप फिर से उन्हें सुसमाचार दें। You see, how different is it for a sinner who's not getting the point of sinlessness? और क्या होगा अगर एक पापी जो है उसे पापहीनता के बारे में पता नहीं चल रहा तो क्या फायदा? I was riding my bike on the road 2 weeks back in Bangalore. और बैंगलोर में 2 हफ्ते पहले मैं अपनी बाइक रास्ते पर चला रहा था। And the pastor stopped me. और एक पासवान ने मुझे रुकाया। He said, "How are you, Pastor Godfrey?" और उन्होंने मुझसे पूछा आप कैसे हैं पास्टर गॉडफ्री? I'm fine. मैंने कहा मैं अच्छा हूँ। And he says, "How is that girl in your church?" और उन्होंने पूछा कि आपकी कलीसिया में वो लड़की कैसी है? I said, "Oh, you mean the girl that you know?" और मैंने कहा ओ वो लड़की जिसे आप जानते हैं। Apparently, that girl was in his church and he couldn't handle her and he asked her to leave. और खासकर बात ये थी कि वो लड़की उनके कलीसिया में थी, वो उन्हें संभाल नहीं पाए और उन्होंने उसे चर्च छोड़ने के लिए कहा। He said, "So, are you able to manage her?"
और उन्होंने पूछा क्या आप उसे संभाल पा रहे हैं? I am not managing her. और मैंने कहा मैं उसे नहीं संभाल रहा, Given her to Jesus. मैंने उसे यीशु को दे दिया है, He is managing her. वो उसे संभाल रहा है, I'm having the effects of it. और मैं उसके जो कार्य है वो मैं देख रहा हूँ। And he tells me, और वो मुझसे कहते हैं, Pastor, लेकिन पास्टर she's living a sinful life. वो पापी जिंदगी जी रही है, How can you encourage her? आप उसे कैसे उत्तेजना दे सकते You हैं? need to ask her to not come to the church. आपको उसे कहना है कि कलीसिया में ना आए, She's not a good example in the church. वो कलीसिया में अच्छा उदाहरण नहीं है। I said, Pastor, मैंने कहा पास्टर, if that's what I'm going to do, अगर मैं ऐसा करने वाला हूँ, nobody will be in the church including me. कलीसिया में मुझे पकड़कर कोई नहीं होगा, It'll be an empty room. वो एक खाली कमरा होगा, Even I won't be there. मैं भी वहां नहीं रहूंगा, None of them will be here. कोई भी वहां पर नहीं होगा। I said, you are looking at this one problem of this girl in this one weakness that she has. और मैंने उनसे कहा कि आप इस लड़की के एक कमजोरी को देख रहे हैं, एक मुद्दे को देख रहे हैं। There's another 99 weaknesses that the Bible talk about that we all have. और दूसरे 99 ऐसी कमजोरियां हैं जो हम सब में हैं, जिनके बारे में बाइबल बात करती है। What about the people in your church who are backbiting? और आपकी कलीसिया में जो लोग एक दूसरे के बारे में उनके पीठ पीछे बात करते हैं, उनके बारे में क्या? What about the people in your church who are lying? और आपकी कलीसिया में जो लोग झूठ बोलते हैं, उनके बारे में क्या? What about those who are stealing? और उनके बारे में क्या जो चोरी कर रहे हैं? What about those who are disrespectful? और उनके बारे में क्या जो एक दूसरे का आदर नहीं करते? Are they all very righteous people in your church? और क्या वो आपकी कलीसिया में बहुत धार्मिक लोग हैं? Why talk about this girl? और इस लड़की के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? What are we called to do? हमें किस लिए बुलाया गया है? We are called to keep on doing what God has asked us to do. हमें बुलाया गया है, जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है उसे करते रहना। You clean them up, आप उन्हें साफ कीजिए, they go back to the mud. और वो वापस मिट्टी में जाते हैं। You clean them up, आप उन्हें साफ कीजिए, they go back to the mud. वो वापस मिट्टी में जाते हैं। You see, that's the whole problem of being a pastor. और यही सबसे बड़ी समस्या है पासवान होने की। You are not supposed to give up on anybody. आपको किसी के ऊपर भी, किसी के भी बारे में हार नहीं माननी है। You cannot give up on anybody. आप किसी के बारे में हार मान ही नहीं सकते। That's the reason why God put you there. और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है। If not, God would have put the local MLA there. और अगर ऐसा नहीं होता था तो वहां का जो एमएलए है उसे परमेश्वर वहां पे रख देता। God would have put the local social worker there. और वहां पर जो सामाजिक कार्य करता है उसे वहां पर रख देता। Why does the Bible say not all are called to be pastors? तो बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि सभी लोग बुलाए नहीं गए हैं पासवान होने के लिए? Because all cannot handle all situations. क्योंकि सभी लोग सभी परिस्थितियों को नहीं संभाल सकते। And we are one of those few who must and will and can and should handle those situations. और हम उन कुछ लोगों में से हैं जो इन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, हमें संभालना है और हमें संभालना होगा। Dear pastors, प्रिय पासवान, that's the price you pay. और यही कीमत आप चुकाते हैं। There's no other way out. उसमें से कोई दूसरा रास्ता नहीं है। There is no shortcut. और कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। If you go the shortcut route, अगर आप शॉर्टकट के रास्ते से जाएंगे, your ministry will end in a shortcut. आपकी जो सेवकाई है वो शॉर्टकट में ही खत्म हो जाएगी। We have to be connected and obedient and loyal to the kingdom's call as shepherds of God's people. और हमें राज्य का जो बुलावा है चरवाहा होने के लिए, लोगों का चरवाहा होने के लिए, उस बुलावे के प्रति उसका पालन हमें करना है, उसके प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। That's what God expects of us. और यही परमेश्वर की हमसे उम्मीद है। And that's what people expect of us. और यही लोगों की हमसे उम्मीद है। Sometimes I get calls from people. कई बार मुझे लोगों से ऐसे कॉल आते हैं, Pastor, पास्टर how are you? आप कैसे हो? Don't you love me? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? Of course I love you. बिल्कुल मैं आपसे प्यार करता हूँ। It's been a long time that you've come to my house. और बहुत दिन हो गए आप मेरे घर नहीं आए। And guess what is the long time period? और सोचिए कितना लंबा समय हुआ है। 2 weeks back I was in their house. 2 हफ्ते पहले मैं उनके घर में था। And they say it's a long time you've come to my house. और वो कहते हैं लंबा अरसा हुआ है आप मेरे घर नहीं आए। I was asking God. और मैंने परमेश्वर से पूछा, Do you have a different calendar, God? और क्या तेरे पास कोई दूसरा कैलेंडर है That I don't know of? जिसके बारे में मैं नहीं जानता? According to my calendar, it was 2 weeks back I was in that house. और मेरे कैलेंडर के मुताबिक मैं 2 हफ्ते पहले उनके घर में था। And they're still not satisfied. और वो अभी तक तृप्त नहीं है। In a loving way. और वो प्यार करते हैं उस तरह से। They love me very much. वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। You see, that's the expectation of God's people.
और देखिए ये लोगों की परमेश्वर के लोग की उम्मीद है। Now, can a pastor continue to do that all the time? और क्या पासबान ऐसा हर बार करते रह सकता है? Can you be in everybody's house every week, Pastor Ray? और पास्टर रे क्या आप हर हफ्ते सब लोगों के घर में रह सकते हैं? But Pastor Ray can ask somebody else to be at their house. लेकिन पास्टर रे किसी और को कह सकते हैं उनके घर जाने के लिए। That's when we start multiplying our role and our leadership. और उसी वक्त हम अपने काम को बढ़ोतरी देते हैं जब और हमारे अगुवाओं को बढ़ोतरी देते हैं। The point is not that the pastor is supposed to be in the house. और मुद्दा ये नहीं है कि पासबान को उस घर में रहना है। The point is that a representative of the kingdom of God has to be in their house and care. लेकिन मुद्दा ये है कि परमेश्वर के राज्य का एक प्रतिनिधि उस घर में हो। And that can be anybody from the church. और वो कलीसिया में से कोई भी हो सकता है। And that's where we need to take our people. और वहीं पर हमारे लोगों को हमें ले जाना है। Some of the things that our role will require for us to have. और कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूरी है हमारे कार्य में। The first पहली is our commitment. वो है हमारा समर्पण। How committed are you and me in this role? इस कार्य में आप और मैं कितने ज्यादा समर्पित हैं? You know, I was talking to the Bible college students last week. और बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों से मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा And I था। was telling them about my understanding when I signed up for the kingdom of God. और मैं उनको मेरी समझ के बारे में बता रहा था जब मैंने परमेश्वर के राज्य में अपना नाम लिखाया। And I told them that the kingdom of God, when you sign up and say yes to Jesus for ministry, और जब आप दस्तखत करते प्रभु यीशु को सेवकाई के लिए हाँ बोलते हैं, when you sign up for ministry to God, और जब आप परमेश्वर के प्रति सेवकाई के लिए हाँ बोल देते हैं, God gives you a blank sheet of paper like this. परमेश्वर आपको कागज का एक खाली ऐसा खाली कागज दे देता है। And you know what He asks you to do? और आपको पता है वो क्या कहता है? He asks you to sign here. और वो कहता है कि यहाँ पर आप अपने दस्तखत So when करें। I said yes to Jesus, तो जब मैंने कहा कि मैंने यीशु God, को I हाँ want to बोला serve you. और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूँ। He told me sign the paper down. और उसने कहा कि इस कागज पर नीचे दस्तखत कर दे। Blank paper. खाली कागज। So I signed. तो मैंने दस्तखत किए। Now after signing, और दस्तखत करने के बाद the real story starts. असली कहानी शुरू होती है। What God will do परमेश्वर क्या करेगा? is He'll start putting points on the blank paper. और वो उस खाली कागज पर मुद्दे लिखने लगेगा। And He'll start filling up those points. और वो उन मुद्दों को भरने लगेगा। And some of those points, उनमें से कुछ मुद्दे we would not have even known. हम उन्हें जानते भी नहीं होंगे। He's not told us in advance that this is what He's going to ask us to do. और उसने हमें पहले ये नहीं बताया कि वो हमसे ये करवाने वाला है। But that's what we sign up for. लेकिन उसके लिए हम दस्तखत कर चुके हैं। We don't sign up after knowing things. और हम बातें जानने के बाद दस्तखत नहीं करते। We sign up before knowing things. हम बातें जानने से पहले दस्तखत कर देते हैं। Now, whenever He starts adding things to our life, और जब वो हमारी जिंदगी में जब बातों को जोड़ने लगता है, His grace will be there for us. उसका अनुग्रह हमारे लिए होगा। His mercy will be there for us. उसकी दया हमारे लिए होगी। His love and kindness will be there for us. और उसका प्यार हमारे लिए होगा। God will never put anything on top of us that is not possible for us to do. और परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसी कोई भी बात नहीं डालेगा जो हमारे लिए नामुमकिन हो। He's a very fair and square God. और वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। He doesn't give us things beyond our capacity. और वो हमारे क्षमता के बाहर हमें चीजें नहीं देता। But if we thought लेकिन अगर हमें लगा that we need to know everything, कि हमें सब कुछ जानने की जरूरत है, no. Blank paper, you sign, He starts adding the things. नहीं, आप खाली कागज पर दस्तखत कीजिए, वो चीजें वहां पे भरने लगेगा। That's how we show Him our commitment और इस तरह से हम उसे अपना समर्पण दिखाते हैं and our trust और हमारा भरोसा and our dependence और हमारी निर्भरता and our faith और हमारा विश्वास and our hope. और हमारी उम्मीद। Why we show all that? और हम ये क्यों दिखाते हैं? Because we saw the blank paper, we never saw anything else. और क्योंकि हमने ये जो खाली कागज था वो देखा था और कुछ भी नहीं देखा। That's why we operate on faith. और इसीलिए हम विश्वास में काम करते हैं। That's why we trust God. और इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। So commitment is very important. तो समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। The other important aspect of the requirement of our role is that we have experience and be trained well. और हमारी जो दूसरी जरूरी बात हमारे काम के लिए वो ये है कि हमें तजुर्बा होना चाहिए और हमें प्रशिक्षण मिलना चाहिए। One of the major reasons that you're in Bible college and studying the Bible and studying ministry is so that you get trained and equipped for ministry. और आप सबसे अहम महत्वपूर्ण वजह कि आप बाइबल कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं ताकि आप
सेवकाई के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें। So if we are not trained and equipped for a particular work, तो अगर किसी काम के लिए हम प्रशिक्षित नहीं है, then that requirement will be a big issue in your role. तो वो जरूरी जो बात है वो आपके काम में बहुत ही बड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। Sometimes churches send out pastors without any studies, without any experience, without any training. They say, "Oh, we need to have faith. God will take care of them. Let them go." और कई बार कलीसिया पासवानों को अपने कलीसिया से भेजती है और उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता, उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और वो ये कहती है कि हमें विश्वास करने की जरूरत है और जाइए। God will sure take care of them. और परमेश्वर उनका ख्याल रखेगा। But He's given us wisdom. लेकिन उसने हमें ज्ञान दिया है। He's given us a checklist. और उसने हमें एक चीजों की सूची दी है। We need to be prepared. और हमें तैयार रहने की जरूरत Be है। ready for things. हमें बातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। We can't say God was with us and we need faith that God will take care. No, that is stupidity. That's foolishness. और हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम किसी चीज का ध्यान न रखें, तैयार ना हो और कहे कि परमेश्वर जो है वो बातों का ध्यान रख लेगा। The other requirement in our role. और दूसरी जरूरी बात हमारे काम में, are we ready and willing to handle crisis and situations? और क्या हम तैयार हैं और क्या हम इच्छा रखते हैं परिस्थितियों को संभालने के लिए? Are we ready and willing? क्या हम तैयार और इच्छा रखते हैं? You know, sometimes we are ready. और कई बार हम तैयार होते हैं। We've been trained how to handle it. और हमें प्रशिक्षित हम होते हैं कि किस तरह से उसे संभालना है। But we are not willing. लेकिन हम इच्छुक नहीं होते। We don't like it. हमें पसंद नहीं होता। We feel it's too difficult for us. हमें लगता है हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। We like something easy. हमें कुछ आसान बात अच्छी लगती We है। want something that is not problematic. और हमें ऐसा कुछ अच्छा लगता है जिसमें कोई मुसीबत ना हो। We need to check our heart. हम अपने दिल को हमें जांचने की जरूरत है। Because when we signed up for Jesus, we never made all these exceptions. क्योंकि जब हमने यीशु के लिए जब हमने दस्तखत किए थे, तब हमने ये सारी बातें नहीं निकाली थी। We signed the blank paper. हमने खाली कागज पर दस्तखत किए We थे। never said, God will serve you, but this, but that, not this, not that. We never gave any terms and conditions to God. लेकिन हमने जब दस्तखत किए, हमने कहा परमेश्वर हमें तुम पे भरोसा है, हमें आप पे भरोसा है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए और वैसे भी नहीं होना चाहिए। Another requirement in our role. लेकिन एक और जरूरी बात हमारे काम में, Are we enjoying what we are handling? जिस बातों को हम संभाल रहे हैं, क्या हम उसमें आनंद ले रहे हैं? Are we excited and feeling happy about it and really being blessed with it? क्या हम उसके बारे में उत्साहित हैं? क्या हम आनंदित हैं और उसके द्वारा क्या हम आशीषित हो रहे हैं? Sometimes I see people doing ministry कई बार मैं लोगों को देखता हूँ जो सेवकाई कर रहे हैं with a lot of sorrow and burden. और उनको बहुत दुख और बहुत ज्यादा बोझ होता है। There's no happiness at all in them. उनमें कोई आनंद नहीं होता। It's like somebody has hijacked them and manipulated them and forced them and asking them to do ministry. और ऐसे लगता है कि किसी ने उनको हाईजैक किया है, उन्हें बंदी बना लिया है और उन्हें जबरदस्ती उनसे सेवकाई करवाई जा रही है। And the other half of the people, I और see, दो लोगों का दूसरा हिस्सा, they think they're doing God a favor. और उन्हें लगता है वो परमेश्वर पे उपकार कर रहे हैं। They think that they're indispensable. और उन्हें लगता है कि उनका कोई जोड़ नहीं है। That's not a good attitude. और ये गलत बात है। We need to be careful. आपको ध्यान रखना The है। other requirement in our role, और दूसरी बात, जरूरी बात, are we faithful and true to our function? क्या हम हमारे कार्य के प्रति विश्वास योग्य और सच्चे हैं? Truthfulness and faithfulness is a vital ingredient in the kingdom of God's functionality. सच्चाई और विश्वास योग्यता परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Especially as a pastor. विशेषतः जब आप पासबान हो, Are you faithful to your people? क्या आप अपने लोगों के प्रति विश्वास Are योग्य you हैं? faithful to your family? क्या आप अपने परिवार के प्रति विश्वास Are योग्य you हैं? faithful to your staff? क्या आप जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके प्रति विश्वास Are योग्य you हैं? truthful and transparent to them? क्या आप उनके साथ सच्चाई से और पारदर्शिता से पेश आते हैं? Can people see through and through your life and in your work? क्या लोग आपकी जिंदगी के आर पार देख पाते हैं? Or there are only people pointing fingers at you? या लोग केवल आपकी ओर उंगली उठा रहे हैं? If this function is not in its 100%, अगर ये काम उसके 100% में नहीं हो रहा, you're going to have a hindrance in your ministry. तो आपकी जो सेवकाई है उसमें आपको मुश्किल होने वाली And है। that hindrance will not come from the devil. और वो रुकावट वो शैतान से नहीं आएगी, It will come from the people who you are ministering to. वो उन लोगों से आएगी जिनकी आप सेवकाई कर रहे हैं।
It's got nothing to do with the devil. और शैतान के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। It's got everything to do with you. उसका सारा लेना देना आपसे है। It's because of lack of your faithfulness and truthfulness and your honesty towards people. और वो इसलिए है क्योंकि आप में विश्वास योग्यता और सच्चाई लोगों के प्रति नहीं है। People will begin to lose trust and confidence and credibility. लोग आप में उनका जो भरोसा है, उनकी सच्चाई है, वो उसे गवा देंगे। Today that's happening in many organizations and ministries and churches. और ये आज कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे कलीसियाओं में और सेवकाइयों में हो रहा है। People don't have a good impression about what they see and hear. और जो लोग सुनते हैं और जो देखते हैं उसके बारे में लोगों की उनकी अच्छी गवाही नहीं होती। Another requirement in our role as pastors और दूसरी जरूरी बात पासबान होने के कार्य में is that we have a certain amount of dedication and passion. और वो ये है कि हमारे अंदर एक जुनून और एक समर्पण हो। Dedication is vital. समर्पण महत्वपूर्ण है। If people don't see that we are dedicated to our role to them, लोग अगर ये नहीं देखते कि उनके प्रति हमारे काम में हम समर्पित हैं, and if we don't show that passion, और अगर हम वो जुनून नहीं दिखाते, people are not going to trust तो us. लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। Another requirement, और दूसरी जरूरी बात, your time and your energy. आपका वक्त और आपकी ऊर्जा। How many minutes of a day do you actually spend as a pastor, functioning as a pastor? दिन के कितने मिनट आप बिताते हैं पासबान की तरह काम करने में? And in that functionality there can be 100 points. और उस काम करने की उस सूची में शायद सैकड़ों मुद्दे होंगे। It's the pastor's responsibility to make sure that the whole church functions good. और ये पासबान की जो जिम्मेदारी है कि वो उसकी कलीसिया अच्छी तरह से काम करे। But is there time and energy dedicated towards all of these things? लेकिन क्या आपका समय और आपकी ऊर्जा इन बातों के प्रति समर्पित है? Or you take your function every day lightly? या आपका हर रोज का आपका जो काम है उसे आप हल्की तरह से लेते हैं? Part of that time and energy goes into disciplining yourself every day. और उसमें से एक वक्त और ऊर्जा अपने आप को Disciplining yourself. अनुशासन लगाने में जाता है। Many times when I talk to Christian workers, और कई बार जब मैं मसीही जो काम करते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, when I talk to pastors, और जब मैं पासबानों से बात करता हूँ, I ask them, so pastor, typically tell me how your day will look. और पास्टर मुझे बताइए कि आपका आज का दिन कैसा होगा? What do you do from morning to night? और सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो? Most of them उनमें से कई जन don't have a schedule. उनके पास कोई वक्त ही नहीं होता, उनके पास कोई वक्त का पत्र ही नहीं होता, They don't have a timetable. और उनके पास कोई वक्त का पत्र नहीं होता, They don't have an idea what they're going to do tomorrow. और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कल क्या करने वाले हैं, They are lost of what they're supposed to do today. और आज जो करने वाले हैं उसके बारे में उन्हें नहीं पता होता। That's part of the time and energy gets lost and gets wasted when you don't have a disciplined lifestyle as a pastor in your calling towards people. और जब आपकी जिंदगी में लोगों के प्रति जो आपकी सेवकाई है, पासबान जब आप है, तो आपकी जिंदगी में अगर लोगों के अगर अनुशासन नहीं है तो आपका वक्त और आपकी ऊर्जा जाया होने वाली। Our call as pastors have a lot of discipline in it. और हमारा बुलावा है पासबान होने का जो बुलावा है, And if we ignore discipline, और उसमें अगर हम अनुशासन को नजरअंदाज करेंगे, some part of the growth of our ministry is going to get stuck. हमारी सेवकाई की जो बढ़ोतरी है उसमें कुछ रुकावट आएगी। And I want to end with the final requirement of our role. और जो हमारे काम की जो आखिरी जरूरी बात है उसे बताकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। Your love and your affection towards your functioning. आपका प्यार और आपका प्रेम आपके काम के प्रति। How much of love and affection goes into your work? आपके काम में आपका कितना प्यार है? Can people feel and experience that love? क्या लोग उस प्यार को महसूस कर पाते हैं? Are you able to actually generously give out affection to people? क्या आप लोगों को प्यार दे पाते हैं? You know, whenever I think of my role as a pastor, और जब मैं अपना काम जो है पासबान होने के तौर पे उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, I get very scared every day. मैं बहुत डर जाता हूँ हर रोज। Scared in a good way, not in the negative. और अच्छी तरह से मैं डरता हूँ। My fear is more, God, और मेरा भय है परमेश्वर, am I really making you happy every day?
क्या मैं हर रोज तुझे सच्ची खुश कर रहा हूँ? Am I really doing what you want me to do every day? और क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो तू चाहता है कि मैं करूँ? Am I able to love people and show affection and mercy and kindness to people? और क्या मैं लोगों को तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह, तेरी दया दिखा पा रहा हूँ? Am I actually able to function the way you functioned when you lived on earth and served people? और जब तू धरती पर था और जब तूने सेवकाई की, उसी तरह से क्या मैं तेरी तरह अनुग्रह और प्यार दिखा पा रहा हूँ? My prayer and my requirement and my desire मेरी प्रार्थना, मेरी जरूरत is that I will function nothing less than Jesus' functionality. और वो ये है कि मैं उस तरह से काम करूंगा जिस तरह से यीशु ने किया और उससे 1% भी कम नहीं। If it's possible to do more than him, अगर उससे ज्यादा करना संभव है, I'll be very happy to do it. तो मैं वो करने में बहुत मैं खुश होऊंगा। But my prayer is that I will never do anything less than what he's done. लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि उससे कम मैं कुछ भी नहीं करूंगा। My standard is Jesus the good shepherd. और मेरा जो माप है वो यीशु जो अच्छा चरवाहा है वही है। Our standard should be Jesus the pastor. और हमारे नापने का मुद्दा सिर्फ यीशु जो अच्छा चरवाहा है वही होना चाहिए। If anything falls short of Jesus' functionality, the way he did his ministry to people, showed love and affection, gave time and taught God's word, if anything is short of that, we have a lot of homework and backlog to take care of. अगर यीशु ने जितना प्यार, जितना काम, जितना वक्त लोगों को दिया, जितना करुणा लोगों को दी, अगर उससे थोड़ा सा भी हमारी सेवकाई, हमारा काम उससे थोड़ा सा भी कम है, तो फिर हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। This doesn't mean whether you're in 5 years or 10 years or 30 years of ministry. It doesn't mean if you have to change and become Jesus' standard, you better do it to be effective and be a blessing the way God intends for you and me. और जिस तरह से यीशु ने सेवकाई की, अगर उस तरह से आपको सेवकाई करके उस तरह से आपको अच्छी तरह से आपको निष्कर्ष चाहिए, तो अगर ये अहम नहीं रखता कि आप शायद 5 साल या 10 साल 20 साल 30 साल आप सेवकाई कर रहे हैं, आपको यीशु के नाप की तरह आपको सेवकाई करनी है। Let's all pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Father, thank you for your word. पिता, तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you for your love. तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you for your call. तेरी बुलावे के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you for the trust. तेरे भरोसे के लिए तुझे धन्यवाद। And thank you for the opportunity और तेरे मौके के लिए धन्यवाद to serve you, Lord. तेरी सेवकाई करने का मौका। Help us to be faithful shepherds. हमें मदद कर, ताकि हमें सहायता कर, ताकि हम अच्छे चरवाहा बन सके। And what it would take for us to be good pastors. और हमें वो प्राप्त हो जो एक अच्छे पासबान में होना चाहिए। May you teach us these things तू हमें ये सारी बातें सिखा in a more and more clearer way. और ज्यादा स्पष्ट तरह से, And give us the ability और हमें वो क्षमता दे to be obedient कि हम तेरा पालन करें, to your voice and plans तेरी आवाज, तेरी वाणी का और तेरी योजना का पालन in our lives, हमारी जिंदगी में, in our families, हमारी परिवारों में and for our ministries. और हमारी सेवकाइयों के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।